students, good morning. Today we are going to start a new chapter which name is motion in a plane. In previous lectures you study about the motion in a straight line which is called the one dimension motion. Here you study about plane motion. Plane motion first topic is vector quantities, vector analysis. Vector analysis is a part of the physical quantity. What is physical quantity? Physical quantity is that quantities when write numerical value and unit write together. When numerical value and unit write together. Only when we write 2, then you say it is the number, and when write the kg, then you say it is unit. When 2 kg write, then both it is called the physical quantity. What is physical quantity? When numerical value and unit write together is called the physical quantity. On the basis of the direction, physical quantity is two types. Physical quantity is two types. First is scalar and other is vector quantity. Vector quantity. Scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity, what is scalar quantity? Scalar quantity is that quantity where given only one magnitude, no direction. हमने कहा स्केलर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो ऐसी क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे मेजरमेंट जो आपने किया है उसकी बात कर रहा हूं. जहां केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, यूनिट की डायरेक्शन की जरूरत ना हो, क्या कहता है स्केलर. जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए अगर किसी से कहते हैं कि यह स्थान कोलकाता यहां से कितना डिस्टेंस पे है, कोलकाता और जौनपुर की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बताते हो 700 किलोमीटर. लेकिन अगर मैं पूछ देता हूं आपसे कि यहां से, या आपसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं अगर कहूं आपसे कि आपका हाउस यहां से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप बता दो 5 किलोमीटर. और मुझे यदि पूछना हो कि आप आपके हाउस पे मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊं, तो आप कहोगे यहां से ईस्ट में 3 किलोमीटर जाइएगा, फिर वहां से एक राइट रोड जाता है. देखिए बार बार आप चीज बता रहे हैं. पहले तो आपने कहा कि सीधे जाइएगा, इंगित करेंगे, एरो दिखाएंगे, एरो दिखाएगा, वह बताएगा इतना किलोमीटर, तो आप कहेंगे यहां से 3 किलोमीटर ईस्ट में जाइए. फिर वहां से राइट हो जाइएगा, राइट होइएगा और 2 किलोमीटर चले जाएगा, मेरा हाउस आ जाएगा. तो आपने क्या क्या बताया? आपने मैग्नीट्यूड बताया और डायरेक्शन बताया. तो यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता देते हैं, you when a quantity have magnitude with direction, when magnitude with direction is called the vector quantity. When magnitude with direction is vector quantity, and when given only one magnitude, no direction, only one magnitude given, no direction, then it is called the scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब अलजेब्रिकल मेथड से होता है. वेक्टर क्वांटिटी में हम चलते हैं तो यह वेक्टर एडिशन का यूज होता है. यहां पे मैंने कहा आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो आपने कहा जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को एक साथ लिख देते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी होता है. और डायरेक्शन के बेस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, scalar quantity or vector quantity. Scalar quantity is that quantity which have only one magnitude, no direction, is called a scalar, and that quantity which have magnitude with a direction is called the vector quantity. अब scalar के लिए जैसे distance, scalar में क्या आता है? distance. Distance is scalar quantity. Speed, scalar quantity. Work, scalar quantity, and so on. etc. Scalar quantity. Electric current scalar quantity, charge scalar quantity, but vector quantity displacement.
डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, velocity is vector quantity, force is vector quantity, electric density vector quantity, electric field, magnetic field is vector quantity, etc. तो आपको मैंने स्केलर और वेक्टर बता दिया। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। आपने कहा स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन एंड दैट क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर का एग्जांपल मैंने दे दिया, और एग्जाम वेक्टर को हम स्केलर से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पढ़ना। हाँ, एक चीज और है, आगे जाने के बाद एक क्वांटिटी और पढ़ना हो, टेंसर। आपके कोर्स में नहीं है टेंसर, जो कभी स्केलर और कभी वेक्टर बन जाता है। तो टेंसर आपको हम नहीं बता रहे हैं, हमने आपको स्केलर और वेक्टर बताया। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा वेक्टर क्वांटिटी को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो की जरूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो विच लेंथ इज मैग्नीट्यूड एंड इट्स हेड, इट इज हेड इज डायरेक्शन। हमने कहा एक एरो से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका जो लेंथ आता है, एरो का जो लेंथ होता है वह मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और जो उसका नुकीला भाग मतलब जिसे आप हेड कहते हो वह क्या रिप्रेजेंट करता है, वह आपको डायरेक्शन इंगित करता है। जैसे अगर कहीं लिखा हो ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए इज ए वेक्टर, तो अब हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, अब सीधे लिख देंगे ए वेक्टर या वेक्टर ए। अगर कहीं किसी नंबर के ऊपर एरो लग गया है, किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर मैंने एरो लगा दिया, तो उसे वेक्टर कहा जाता है। जैसे कहा गया यफ, तो आप कहेंगे यफ माने फोर्स, और इसके ऊपर एरो लगा तो कहेंगे वेक्टर यफ, मतलब यफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो की जरूरत होती है, जिसकी लेंथ जो होती है वह मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, और जिसका हेड जो होता है वह डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो की जरूरत है। अब पोजीशन वेक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चालू हो रही, मैथमेटिक्स की चीज है यह। पोजीशन वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर हो, ये सब मैथ में भी आपके आएगा, 12th क्लास में मैथमेटिक्स में आएगा, फाइनल ईयर में। तो क्या, और वैसे भी आगे क्लास में पढ़ेंगे तो वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर एक मैथमेटिक्स की बुक ही अलग हो जाएगी। तो आइए मैंने आपको बताया क्या होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक्स ओ वाई, और यह एक पॉइंट पी है। अब इस P का पोजीशन वेक्टर हमेशा जब रेफरेंस फ्रेम पोजीशन ओरिजिन हो, फ्रेम जो है यदि ओरिजिन माना जाए, तो ओरिजिन से इसको जो दिखाया जाएगा एरो से, यह क्या होगा, पोजीशन होगा। तो आप कहेंगे वेक्टर OP इज पोजीशन वेक्टर, क्या है, पोजीशन। समझ में आ गया, माने ओरिजिन फ्रेम बना के, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, that point which frame is origin of coordinate geometry is called the position vector. पोजीशन वेक्टर से इंपॉर्टेंट तो आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। पोजीशन तो समझ गया ना, जैसे प्लेन पे कोई पॉइंट पी लिया जाएगा और उसको फ्रेम ओरिजिन को मान के रिप्रेजेंट कर देना ही क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यही इंपॉर्टेंट फिर आ गया। अभी अभी हमने आपको पोजीशन बताया था, एक्स ओ वाई। बहुत केयरफुली इसका स्टडी करिएगा वेक्टर का, क्योंकि हम जब 12th में आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, तो वेक्टर की जरूरत पड़ती है और यहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं।
तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? व्हेन ए पॉइंट ए डिस्प्लेस टू बी, जब ए को हम बी तक डिस्प्लेस कर दें तो वेक्टर ए बी, माने ए बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर ए बी, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी। हाउ कैन राइट? पोजीशन वेक्टर, देखिए याद फॉर्मूला बनाने का तरीका देखिएगा, लास्ट में भी है, लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। माने बी का पोजीशन, माने बी का पोजीशन क्या होगा? देखिए बी का पोजीशन कहां से लेते हैं? हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। या क्या लिखेंगे? बी का पोजीशन क्या होगा? बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी मालूम हो गया। अगर वेक्टर बी ए डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो आप क्या करते हैं? लास्ट में क्या है? ए है, लास्ट में ए है, तो लिखेंगे ए का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन। अब तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, हमने पोजीशन वेक्टर आपको बता दिया। अगर कहीं लिखा हो पी क्यू, वेक्टर पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो कैसे मालूम होगा वेक्टर पी क्यू की वैल्यू? लिखेंगे क्यू का पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ओके, पोजीशन वेक्टर तो समझ में आ गया क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। या वेक्टर बी ए को लिखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस, लास्ट में ए है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इस तरह हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड कर लेते हैं। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ लिया, पोजीशन वेक्टर समझ लिया, तो वेक्टर की कुछ अनदर टाइप भी हैं, उसको मैं बताता हूं, बहुत इजी है, उसको देखते जाइएगा। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, व्हाट इज इक्वल वेक्टर? दैट वेक्टर, दैट टू वेक्टर, ऐसा दो वेक्टर विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, ऐसा दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। देखिए जितना लेंथ इसकी उतना लेंथ इसकी, जो डायरेक्शन इसकी वही डायरेक्शन इसकी, तो इसको लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ओके, इक्वल वेक्टर क्या होता है? व्हेन टू वेक्टर विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है, इक्वल वेक्टर होता है। क्या होता है? अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर विच that two vector which magnitude is same but direction opposite, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। मतलब वेक्टर ए इसे निगेटिव वेक्टर भी कहते हैं, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, लेकिन कैसे? माइनस के साथ। अब यहां से एक चीज कंफर्म कर लीजिए आप, निगेटिव वेक्टर में जैसे अगर हमको कहीं लिखा है वेक्टर ए बी, आप सिंपली लिखते हो ए बी, तो इसको बी ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ए बी लिखा तो उसको बी ए लिख सकते हो अलजेब्रा में। लेकिन अगर कहीं लिख दिया वेक्टर ए बी, तो इसको माइनस वेक्टर बी ए, डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है साइन आगे का बदल देते हैं। यह आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि यही है अपोजिट वेक्टर। माने वेक्टर ए बी को हम बी ए वेक्टर नहीं लिख सकते, माइनस वेक्टर बी ए लिख सकते हैं। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो और वह इक्वल हो। इसके बाद आता है मॉडुलस वेक्टर। मॉडुलस वेक्टर क्या है? व्हाट इज मॉडुलस वेक्टर? यह वेक्टर के टाइप है सब, खाली जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बताते चलेंगे। जैसे वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड निकालना हुआ, तो इसे लिखते हैं मॉड वेक्टर ए, और मॉड वेक्टर ए को सिर्फ ए लिखा जा सकता है, जिसे मॉडुलस वेक्टर कहते हैं। ओके, मॉडुलस वेक्टर मतलब मॉडुलस वेक्टर ऑफ ए, मॉडुलस वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए लिख सकते हैं, जो ए के बराबर होता
माने यदि कहीं लिखा हो वेक्टर पी क्यू तो इसे आप लिख सकते हो सिर्फ पी क्यू। मतलब यह हुआ इसे पी क्यू लिखिए या क्यू पी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि मॉड में है तो, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा क्या होता है मॉडुलस। जहां भी मॉड लग जाता है, जैसे अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि यह 3 है, अगर माइनस है तो इसको केवल +3 ही लिखते हैं, और वैसे भी 3 है तो केवल 3 ही लिखते हैं। तो मॉडुलस लग जाने के बाद साइन प्लस ही होती है, ठीक। तो मॉडुलस वेक्टर समझ में आया, जिसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, वह हो जाता है आपका मॉडुलस वेक्टर। मॉडुलस वेक्टर के बाद आपको जान लेना है, इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी वेक्टर फॉर्म को दिखाने के लिए हम उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है? दैट वेक्टर विच मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आता है? 1 आता है। दैट वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लिखते हैं कैप ए। अगर कहीं कैप ए लिख गया, इसका मतलब यह कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। पढ़ेंगे क्या? कैप ए। क्या पढ़ेंगे? कैप ए या ए कैप। ए कैप या कैप ए। फॉर्मूला बनता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ओके, अब मैं यहां से कुछ चीजें आपको बता दूं। पहले सपोज करो, अच्छा रहने दीजिए, अभी हमने बताया यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर मींस कैप ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को एक्स वाई जेड, इसका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैप आई, इसका कैप जे और इसका कैप के। माने एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कैप आई, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कैप जे और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कैप के। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा यूनिट वेक्टर जो परस्पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को दैट vector which is perpendicular and unit magnitude is 1 unit, that unit vector which is perpendicular is called the orthogonal unit vector। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि वेक्टर a is equal to 2 cap i plus 3 cap j minus cap k, और कह दिया इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करिए। आपको मैंने बताया वेक्टर a is equal to 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस कुछ नहीं तो 1 कैप के मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और इसका मॉडुलस, इसके पहले मैंने मॉडुलस वेक्टर पढ़ाया, इसका मॉडुलस क्या होगा? तो पहले मॉडुलस निकालना देख लो। मॉडुलस वेक्टर ए, एक फार्मूला बनता है। सपोज करो एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दिया है ए कैप आई प्लस बी कैप से प्लस सी कैप के, तो इसका मॉडुलस होता है, या वेक्टर ए की वैल्यू मान लो दिया था, तो मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है का मॉडुलस इसका मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 अंडर रूट 14। समझ में आया? मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस कैसे निकलता है? नहीं आया तो फिर से देखिएगा, मैंने आपको बताया क्या होता है मॉडुलस वेक्टर। एक एग्जांपल और लेता हूं। सपोज करो वेक्टर एफ की वैल्यू दिया है 2 कैप जे, 2 कैप या कैप आई प्लस 5 कैप जे प्लस 6 कैप के। क्या इसका मॉड क्या होगा? मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का? तो मॉड वेक्टर एफ अंडर रूट, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। मॉडुलस निकालने का तरीका यही, अगर मॉडुलस कहीं निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैथ में हो या फिजिक्स में हो, मैथ में भी आएगा, तो इसी तरह निकलता है 1 अंडर रूट 1 प्लस 25 प्लस 36 को ऐड कर देंगे, 26 प्लस 36 अंडर रूट 62 अंडर रूट 62। अब आपसे मॉडुलस निकालना तो मैंने बता दिया। अगर आपसे कहता है यूनिट
वेक्टर निकालिए, फोर्स का यूनिट वेक्टर निकालिए जब दिया है वेक्टर F इज इक्वल टू 2 कैप आई प्लस कैप जे माइनस 3 कैप के, ऐसा दिया है और कह रहा है इसका यूनिट वेक्टर क्या होना, वेक्टर F क्या होगा। तो वेक्टर F कैप F मतलब यूनिट वेक्टर, वेक्टर F अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर F। तो वेक्टर F क्या है उसको लिख लीजिए 2 कैप आई प्लस कैप जे माइनस 3 कैप के अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर F को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यह आपका यूनिट वेक्टर आ गया। तो आया यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1। तो कैप ए इट इज डिनोटेड बाय कैप ए, कैप ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। और निकालने का तरीका एक न्यूमेरिकल द्वारा मैंने आपको बता दिया। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलरली होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसके बाद आता है जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दैट वेक्टर विच मैग्नीट्यूड ऑलवेज जीरो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए, जीरो आ जाए। समझ में आया। इसके बाद कोप्लेनर, कोप्लेनर क्या होता है, एक प्लेन पे जो वेक्टर होता है, जैसे मैं बताऊं आपको एक प्लेन के वेक्टर का मतलब होता है यह और यह और यह। अगर बात की जाए इस पे तो यह कोप्लेनर है। एक प्लेन पे तीन वेक्टर, जब 3 वेक्टर एक ही प्लेन पे होते हैं तो इसे कोप्लेनर कहा जाता है। जब 3 वेक्टर एक प्लेन पे होते हैं तो इसे कोप्लेनर कहा जाता है। दूसरी चीज आपको जान लेना है क्या होता है कोप्लेनर के बाद, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर होता है, ये देखिए जब एक पॉइंट से तीनों वेक्टर क्या हो क्रॉस हो, या तीनों का हेड एक पॉइंट पे हो या तीनों का टेल एक पॉइंट पे हो, एक मिनट सॉरी, तीनों का टेल कहां हो, ये टेल सपोज करता हूं मैं, टेल तीनों का जब टेल एक पॉइंट पे होता है तो इसे को इनिशियल कहा जाता है। इस तरह यह को इनिशियल है, तीनों का टेल एक पॉइंट पे होता है। एक चीज मैं बताना थोड़ा सा भूल गया, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे जब हम इसको शिफ्टिंग करना होता है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और इसकी शिफ्टिंग करना हो और इसका डायरेक्शन पूछ दे, तो शिफ्टिंग का मतलब जैसे डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं, और यह वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी का टेल इससे ऐड करके यह शिफ्टिंग करते हैं वेक्टर बी। और जो एंगल फॉर्म करना होता है, जब भी एंगल निकालना हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो कि तो दोनों का टेल एक पॉइंट पे हो उसके बीच का एंगल निकालना चाहिए, या दोनों का हेड एक पॉइंट पे मिले तो उसके बीच का एंगल निकालना चाहिए। अगर दो वेक्टर के बीच का कहीं भी एंगल फाइंड करना हो तो दोनों का टेल एक पॉइंट पे होना चाहिए या दोनों का हेड एक पॉइंट पे होना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको इस फिनोमेनन बताता हूं, ये शिफ्टिंग है पूरा, कैसे शिफ्ट करता है। जैसे आपको दे दिया यह वेक्टर ए है, वेक्टर ए और यह वेक्टर बी है, इसके बीच का जो एंगल दे रहा है यह एंगल सपोज करो दे दिया 120 डिग्री। तो इसके वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड होता है, आप इसका मतलब क्या करेंगे, इसकी शिफ्टिंग करेंगे। यह वेक्टर बी जैसे है ड्रॉ कर लो और वेक्टर ए का हेड इसके टेल से, माने इसका टेल इसके टेल से जोड़ेंगे तभी एंगल आएगा। जैसे यह था, यह आपका वेक्टर था, यह 120 डिग्री का है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर पूछता तो यह एंगल प्राप्त करेंगे। दोनों का हेड जहां मिला हो या दोनों का टेल जहां पे मिला हो, कितना डिग्री, 60 डिग्री। आप किसी तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अब इसको भी हम खींच सकते हैं। जैसे वेक्टर ए जैसे है लिख दिया मैंने, और वेक्टर टेल ए, इसका मतलब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोनों का हेड। तो आपने बताया था कि यह एंगल 120 डिग्री का है, तो यह एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फॉर्म करना हो, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल न्यूमेरिकल में आए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में नहीं होगा ऐसा, लेकिन मैं थोड़ा सा लेवल आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना हो तो हमेशा की तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह जुड़ना चाहिए, कि तो दोनों वेक्टर का हेड एक जगह पे जुड़ना चाहिए, तभी आप एंगल फॉर्म कर सकते हो। जैसे दे दिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है,
और इन दोनों के बीच का एंगल 130 डिग्री है। तो इन वेक्टरों के बीच का एंगल क्या होगा, तो यह होगा। शिफ्ट कर देंगे आगे बढ़ाते। तो यह वेक्टर हो गया था, मैंने आपको बता दिया जो वेक्टर में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, नल वेक्टर मींस जीरो वेक्टर क्या है। इसके बाद आता है एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का जोड़ना, जो अगले टॉपिक में चले। वैसे वेक्टर के और भी टाइप होते हैं, आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। मैं आज टुडे we are study about the vector quantity. What is vector quantity? That quantity which have magnitude with direction is called the vector quantity, and that quantity which have only one magnitude no direction is called the scalar quantity. Vector quantity is denoted by a arrow which head is represent to the direction and its length is magnitude. Vector is many type. First is equal vector when two vector